بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کا سفر شروع کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو بھی بھیجا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس روئے زمین پر جلوہ فروز ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور آ کر کے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون کون سی وجوہات ہیں؟ ایسے ہی کچھ سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم دیتے چلیں گے۔ سب سے پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جس کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا وہ قوم یہودی تھی۔ ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ رہے تو ہمارے دین کو تو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو حق کی طرف بلایا اور دعوت دین دیتے رہے، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو ہمیشہ جھٹلاتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 سے 20 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اس طرح لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر دیں۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے توتیانوس نامی ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لائے۔ آپ جب آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلیوں کے ذریعے آسمان پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب توتیانوس حضرت عیسیٰ کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص باہر نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گھر کی طرف گئے۔ آخر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ہے،
पर ये तो हमारा भेजा हुआ वही शख्स है, यानी तोतियानूस है, जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल करने के लिए भेजा था। ये मौजज़ा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों के अंदर तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। इस लड़ाई के अंदर बहुत सारे यहूदियों का कत्ले आम हुआ, जिस तरह के अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह ताला के रसूल हजरत ईसा को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में पड़े हुए हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को आसमानों की तरफ उठा लिया था और यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए हैं और अल्लाह तबारक व तआला गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा कयामत से पहले जमीन पर तशरीफ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हजरत ईसा ही स्लेब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल की जिंदगी इस दुनिया में गुजारेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम करेंगे। आपको मदीने की सरजमीन में गुंबद खुजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा कत्ल हो गए हैं या सूली पर लटका दिए गए थे, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। हजरत ईसा के बाद दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई हुई है वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पर उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर हो चुका होगा और इस दुनिया के अंदर अपना फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह ताला के दीन से दूर करेगा। और उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह ताला के दीन का हुक्म देंगे और उनको अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हजरत खिज़र का किस्सा सुना रहे थे। आपने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई, तो हजरत खिज़र ने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गरामी से नाराज होकर जंगलों की तरफ चल दिए जहां उनको कोई भी ढूंढ न सका और वहां आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। इसी दौरान आपका गुजर एक आबे हयात के चश्मे से हुआ। उसी चश्मे से पानी पीकर आप ता हयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और आपके ता हयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायात में मिलता है। हजरत उनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमुए से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के पास आकर रुक गया। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। उसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, तो उस वक्त उस मजमुए में मौजूद कोई भी इंसान इस शख्स के बारे में इल्म न रखता था। तो उस वक्त हजरत अली करमल्लाह वजहू बोले कि इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। आप बहुत ही नेक और खुदा परस्त इंसान हैं। और बाज़ रवायात के अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम किसी सफर में साथ गए और वहां पर आपने आबे हयात पिया, जिसकी वजह से आपको ता हयात जिंदा रहने का मौका मिला। हजरत खिज़र के बाद तीसरे नबी जो आज तक जिंदा हैं वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पे मौजूद है। जिस तरह की तफासिर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। जिस तरह की हजरत उनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी से हुआ। वहां से गुजरते हुए हमें एक आवाज सुनाई दी कि ए अल्लाह, मुझे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया कि ए उनस, इस आवाज का पता लगाओ कि ये कौन है। हजरत उनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था
जब उसने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तुम मोहम्मद मुस्तफा के सहाबी हो? तो हजरत उनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जी हाँ। उस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और आपकी बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप मेरे साथ वहां चले गए। जब हम लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुलाया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। आप उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। बाज़ उलमाए कराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमजान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं और वहां पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़िदा लोगों की मदद भी करते हैं। इनके बाद जो चौथे नबी हैं जो आज भी जिंदा हैं वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनके जिंदा होने की भी रिवायात काफी मिलती हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाया है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को जन्नत से उठा लिया था। शबे मेराज की रात चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हजरत इदरीस का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैर व सयाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहा करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह का जिक्र बुलंद करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। जमीन पे रहने वाले इंसानों में से सबसे ज्यादा नेकियां उस वक्त हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती थी और आपकी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ शुमार भी हो जाती थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। एक मर्तबा मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस ने कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल दी और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर कराई गई। फिर आपने जन्नत की सैर की ख्वाहिश का इजहार किया तो आपको जन्नत की सैर कराई गई। जन्नत को देखने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि मैं अब यहीं पर रहना पसंद करूंगा। उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पे रहने दिया जाए।